ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ ڈاکٹر مجھے پاگل کرنے کی دوا دے رہا ہے، وہ روتے ہوئے چلائی، پر ہمیشہ کی طرح کسی نے اس کا یقین نہیں کیا۔ اسے ایک بار پھر اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا۔ وہ جانتی تھی اب وہ ڈاکٹر اس کے وجود کو نوچے گا، پر اس بار جب ہوش آیا تو وہ ایک سیاہ کمرے میں تھی۔ اس کے وجود پر نامناسب لباس تھا اور ہاتھ اور پاؤں کے زخم پر مرہم لگے تھے۔ کون ہے یہاں؟ وہ خوفزدہ سی بولی جب کسی نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لیا۔ وہ سہم کر سانس روک گئی۔ ٹرسٹ میں لٹل گرل، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ سرد گہری آواز، اس کی انگلیاں اینا کو اپنی کمر پر رقص کرتی محسوس ہوئیں۔ اس کے سر میں شدت سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ ایک ناقابل برداشت تکلیف اسے بے بس کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں نیم اندھیرا کیے لیٹی تھی۔ روشنی، اجالا، یہ سب اس کی اذیت میں اضافہ کر رہا تھا۔ قسمت نے اسے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے جو کہ یہ عیاں کر رہے تھے کہ وہ نازک سی لڑکی اس وقت بے انتہا درد میں ہے۔ کمرے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سے اس کی آنکھ کھلی اور سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں شہرام خان تھا۔ وہ اینا کی حالت کو دیکھتا ہوا مسکرا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اینا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بہت دکھ ہو رہا ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر، وہ مصنوعی تعصب کے ساتھ بولا تو اینا کے ہوش اڑ گئے۔ اسے دیکھ کر اس کا فشار خون بلند ہوا تو درد کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہی تو قاتل تھا اس کی خوشیوں کا۔ شہرام اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے مزید اس کے نزدیک آیا۔ اینا خوف سے کانپی تھی۔ لب سختی سے باہم پیوست ہو گئے تھے۔ اس کی زبان چیخنے یا کچھ بولنے سے انکاری تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شہرام کو بہت ہی لطف آ رہا تھا۔ ویسے ماننا پڑے گا تم دن بدن حسین ہوتی جا رہی ہو۔ پاگل پن میں بھی تمہاری خوبصورتی مان نہیں پڑی۔ وہ اس کے قریب آتے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے بولا۔ اینا کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ وہ مزید مزاحمت کرنا چاہتی تھی مگر دماغ معاف ہو رہا تھا۔ شہرام نے اس کا چہرہ چھوتے ہوئے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کے بازوؤں کو بھی چھو رہا تھا۔ یہ لمس اینا کو اذیت دے رہا تھا اور اس کے چہرے پر یہ بے بسی شہرام کو خوشی دے رہی تھی، کیونکہ اس نے بھی تو ماضی میں اذیتوں کا سامنا کیا تھا، سو وہ بدلہ لے رہا تھا۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، آگے آگے دیکھنا کیا ہوگا۔ عزت تو جا چکی ہے، بس جان سے جانا باقی ہے، وہ پراسرار لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر وہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ جب اینا نے محسوس کیا کہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھ رہا ہے تو وہ کانپتے ہوئے اسے دھکا دیتی بیڈ سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ شہرام طنزیہ مسکرایا اور اپنی ہوڈی کی ٹوپی سر پر ڈالتا ہوا چپکے سے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گیا۔ اینا حواس باختگی سے سلمہ بیگم کے کمرے میں آئی تھی۔ ماما، وہ شہرام، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ ابھی وہ میرے کمرے میں آیا تھا اور اس نے، وہ تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولی۔ سر میں اٹھتی درد اسے نہال کر رہی تھی۔ سلمہ بیگم نے حیرت سے شاہ جہاں صاحب کو دیکھا۔ شہرام تو لندن میں ہے اینا، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ ریلیکس رہو، آج تمہارا چیک اپ تھا لیکن تم نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ اب دیکھو پھر سے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، چلو ہاسپٹل چلیں۔ سلمہ بیگم پریشانی سے اس کی حالت دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، اس کے چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ چکا تھا۔ نہیں ماما، میری بات سنیں، میں ٹھیک ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شہرام لندن میں نہیں ہے، وہ ابھی میرے کمرے میں آیا تھا، آپ میرے ساتھ چل کر دیکھیں۔ وہ ضدی لہجے میں بولی تو شاہ جہان صاحب اور سلمہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرہ خالی تھا۔ اینا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ دیوانہ وار شہرام کو اپنے کمرے میں ڈھونڈنے لگی، پھر اس نے پورا گھر چھان مارا۔ وہ اسے بلند آواز میں پکارتی ہوئی پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔
और सब उसे हैरत और परेशानी भरी निगाहों से देख रहे थे। ऐना की हालत खराब होने लगी। मामा, मेरा यकीन करें, शहराम मेरे कमरे में आया था। वो बेबसी के मारे हार मानते हुए अपना सर थाम गई। ऐना प्लीज काम डाउन, तुम ठीक नहीं हो, चलो डॉक्टर के पास चलें, तुम्हारी तबीयत बेहतर हो जाएगी। शाहजहान, आप गाड़ी निकालें, मैं ऐना को लेकर आती हूँ। सलमा ऐना की कमर सहलाते हुए बोली। ऐना हरगिज अस्पताल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मज़ाहमत करने लगी, मगर सलमा उसकी तबीयत के पेश नज़र उस पर सख्ती करते हुए उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगी। मामा प्लीज़, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं ठीक हूँ, लेकिन वो डॉक्टर मुझे पागल करने की दवा दे रहा है। प्लीज़ मेरा यकीन करें। वो रोते हुए चिल्लाई, पर हमेशा की तरह किसी ने उसका यकीन नहीं किया। सलमा उसकी फिक्र करते हुए उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगी। ऐना गहरी सांसें ले रही थी, उसका दिमाग माऊफ हो रहा था। शहराम का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी बातें उसे तकलीफ दे रही थी। उसने अपना सर गाड़ी की बाएं जानिब की खिड़की के शीशे के साथ लगा लिया। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने कभी सोचा नहीं था, जिसे उसने अपना हमदर्द समझा था वही उसे इस हाल तक पहुंचाने के पीछे होगा। हॉस्पिटल में वहशत अंगेज सन्नाटा था। अस्पताल से आती एक मखसूस खुशबू ऐना के नथनों से टकराकर उसके वजूद में उतरी तो खौफ की लहर ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। एक मरीज़ा जो ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं थी, वो बेंच पर बैठी मुसलसल चीखते हुए अपने बाल नोच रही थी। नर्सेस उसे काबू करने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की को देखकर ऐना को बहुत डर लगा था। इस अस्पताल में ज़्यादातर ऐसे ही मरीज़ होते थे जिन्हें देखने के बाद वो डर जाती थी कि कहीं उसकी हालत भी ऐसी ना हो जाए। सलमा बेगम उसका हाथ थामे उसे लिफ्ट तक लाई थी। उन्होंने 3rd फ्लोर का बटन दबाया तो लिफ्ट चल पड़ी। मतलूबा फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो तीनों डॉक्टर के कमरे में आ गए थे। सलमा बेगम ने ऐना की कंडीशन के बारे में बताया। डॉक्टर मतीन पुरस्रार निगाहों से ऐना को देख रहा था। उसके यूं देखने पर ऐना को बेचैनी हो रही थी। डॉक्टर मतीन ने उसका चेकअप करते हुए कहा, इसे 5 दिनों के लिए ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल एडमिट करना पड़ेगा। यह सुनते ही ऐना के होश उड़ गए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको जैसे बेहतर लगे वो करें, लेकिन ऐना बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी तक तो इसकी हालत में बेहतरी नहीं आई, बल्कि मजीद बिगड़ रही है। सलमा तफक्कुर से बोली। वो हरगिज अस्पताल एडमिट नहीं होना चाहती थी, और डॉक्टर मतीन के होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी रूह फना हो रही थी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मामा मुझे अपने साथ ले जाएं। मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। वो डरते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। सलमा उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तड़प कर अस्पताल के कमरे से भागने लगी। सलमा शर्मिंदगी से डॉक्टर मतीन को देखने लगी। नर्स ने भागती हुई ऐना को अपने काबू में किया था। छोड़े मुझे, नहीं रहना मुझे हॉस्पिटल। वो मज़ाहमत करते हुए अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नर्स मजबूत जिसामत की मालिक थी। उसने नाजुक सी ऐना को अपने काबू में कर लिया और डॉक्टर मतीन के हुक्म पर अमल करते उसे ज़बरदस्ती नींद का इंजेक्शन लगा दिया। ऐना पर ग़नूदगी छा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसके कान और बालों में ही कहीं जज्ब हो रहे थे। डॉक्टर मतीन से उसे बहुत खौफ आता था। चाहते हुए भी वो अपनी सच्चाई का यकीन किसी को नहीं दिला सकी, क्योंकि कोई उस पर यकीन करता ही नहीं था। अब भी उसे यही डर था कि उसकी हालत का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर मतीन उसे गलत अंदाज में छूने की कोशिश करेगा। मगर ये जाने कैसी बदकिस्मती थी कि वो अपने दिफा में कुछ नहीं कर सकती थी। तेज़ी से उसका जहन हर किस्म के खदशात और फिक्र से आज़ाद होकर उसकी सोचने समझने की सलाहियत को वक्ती तौर पर ख़त्म कर रहा था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और वह मुकम्मल तौर पर होशो हवास से बेगाना हो गई थी। शहराम, आज ऐना को डबल डोज दी है। कुछ ही अरसे के बाद तुम्हारे घर वाले उसे हॉस्पिटल नहीं बल्कि किसी पागल खाने लेकर जाएंगे।
डॉक्टर मतीन कॉल पर हंसते हुए बात कर रहा था। शहराम सिगरेट का धुआं फजा में उड़ाते हुए उसे दाद देने लगा। डॉक्टर मतीन उसका गहरा दोस्त था, इसलिए ऐना की बर्बादी के लिए उसने डॉक्टर मतीन की मदद ली थी। आज रात में सुकून से सोऊंगा। शहराम के लहजे में अनोखी खुशी थी, मगर उसे मालूम नहीं था कि उसकी ये खुशी वक्ती थी। यूं ही डॉक्टर मतीन ने कॉल बंद की, उसकी नज़र सोती हुई ऐना पर पड़ गई। उसका वजूद इस वक्त दुपट्टे से आरी था। नर्स ने उसे ढीला ढाला सा पेशेंट गाउन पहना दिया था। अब उसे देखकर डॉक्टर मतीन की नीयत खराब होने लगी। वो आंखों में शैतानियत लिए उसके करीब आ गया। आधी रात हो चुकी थी, दूर दूर तक सन्नाटा था। कुछ सोचता वो उसके करीब आ गया और उसे नामुनासिब अंदाज में छूने लगा। ऐना का दिमाग फौरी तौर पर अलर्ट हुआ था। उसकी नींद टूटने लगी थी। उसे अपने जिस्म पर किसी का लम्स महसूस हो रहा था और ये सब उसे बिल्कुल खुशगवार नहीं लग रहा था। उसने हिम्मत करते हुए आंखें खोली तो अपने सामने डॉक्टर मतीन को पाया। उसे देखकर ऐना के होश उड़ गए। वो डरकर चीखें मारती उठ बैठी। दूर रहो मुझसे, कितने बेगैरत इंसान हैं आप। डॉक्टर के रूप में आप शैतान हैं जो किसी की इज्जत पर हाथ डालते हैं। वो गुस्सा करते हुए बोली तो उसकी बात सुनकर डॉक्टर मतीन ने बरहमी से उसके बालों को अपनी मुट्ठी में लिया। आवाज नीची रखो पागल लड़की, अपने पागलपन में तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। वो उस पर तंज करते हुए बोला तो ऐना के दिल पर उसकी बात लगी। उसका खून जोश मारने लगा। जानती थी उसे इस हाल तक पहुंचाने में डॉक्टर मतीन का भी हाथ था। जब डॉक्टर मतीन ने उसके बाल छोड़े और उसे नज़रअंदाज करता हुआ उससे दूर हुआ तो अपने पागलपन का मुजाहिरा करते हुए जानबूझकर ऐना ने पेशेंट बेड के करीब टेबल पर रखे कांच के गिलास, जग और वास दूर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिए। कांच एक तेज धमाकेदार आवाज के साथ टूटता था। डॉक्टर मतीन ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा और काम छोड़कर उसके पास आया। ऐना के हाथ में एक और वास था जिसे वो फेंकने लगी थी, मगर डॉक्टर मतीन ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। वो उसके हाथ से वास छीनने में कामयाब हो गया था। ऐना ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। वो किसी भी तरह से यहाँ से फरार होना चाहती थी। इस अचानक हमले पर डॉक्टर मतीन संभल नहीं सका। वो ज़मीन बोस हुआ था। मौके का फ़ायदा उठाकर वो जल्दी से उठी और नंगे पैर भागने लगी। हवास बाख्तगी से भागते हुए उसका पैर कांच के टुकड़े पर पड़ा और वो तकलीफ से सिसकती हुई अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाई और फिसलते हुए गिर गई। उसके पैर और हाथ में ज़मीन पर पड़े कांच बेवस्त हो चुके थे। तकलीफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने हाथों को देखा जिनमें से खून रिस रहा था। अपना बहता खून देखकर वो खौफजदा हो गई। ब्लड प्रेशर लो होने लगा और चंद ही सेकंड्स में वो होशो हवास से बेगाना हो गई। डॉक्टर मतीन गुस्से से उसकी तरफ आया और उसके बेहोश वजूद को उठाकर पेशेंट बेड पर लेटाया। उसने गुस्से में नर्स को कॉल की और उसे कांच उठाने के बाद ऐना के जख्मों की बैंडेज करने को कहा। वाकई दवा असर कर रही है और यह मुकम्मल तौर पर पागल हो रही है। डॉक्टर मतीन उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखते हुए सोचने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक कमरे में चंद आदमी आ गए और उन्होंने डॉक्टर मतीन के मुंह पर क्लोरोफार्म वाला रुमाल रखते हुए उसे बेहोश कर दिया और ऐना के वजूद को उठाते हुए चुपके से निकल गए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी बंद करवा दिए थे। आपका काम हो गया बॉस। उनके साथ मौजूद एक लड़की ने अपने बॉस को खबर दी थी। वो इसी अस्पताल की एक काबिल नर्स थी जिसकी वजह से ये काम आसान हो गया था। कमरे में तारीकी थी। मशहूर कुन खुशबू हर जगह फैली हुई थी। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं, जिस वजह से नीम उजाला और माहौल नहायत पुरसकून हो रहा था। इस बार जब उसे होश आया तो वो उसी स्याह तारीक कमरे में थी। उसके वजूद पर नामुनासिब लिबास था और हाथ और पाँव के जख्म पर मरहम लगे थे। उसका पेशेंट गाउन तब्दील कर दिया गया था। वो हैरत से उठ बैठी और कमरे का जायज़ा लेने की कोशिश करने लगी।
اس کا سر شدت سے درد کر رہا تھا۔ وہ سر تھام کر سوچنے لگی کہ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے یا یہ سب اس کا سراب تھا؟ کیا وہ واقعی پاگل ہو چکی تھی؟ اس کے سر میں دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسی کشمکش کا شکار تھی جب اسے اسی کمرے کے اندر کوئی آتا ہوا محسوس ہوا۔ قدموں کی بھاری آہٹ نے اسے چونکنے اور سر اٹھانے پر مجبور کیا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ سامنے جو شخص نظر آیا اس کا چہرہ تاریکی کے باعث وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کون ہے یہاں؟ وہ خوفزدہ سی بولی۔ اسے لگا کہیں وہ ڈاکٹر متین نہ ہو۔ وہ خود میں سمٹتے ہوئے یہی سب سوچ رہی تھی جب وہ شخص قریب آ گیا۔ اس نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لیا تو وہ سہم کر سانس روک گئی۔ اسے اندھیرے میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے اندر اب اتنی ہمت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ اپنی پوری طاقت لگاتی۔ اس شخص نے نرمی سے اس کی کمر کے گرد بازو باندھ لیے اور اس کے کان کے قریب اپنے ہونٹ لایا تھا۔ ٹرسٹ می لٹل گرل، میں جو بھی ہوں صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو اینا۔ سرد گہری آواز میں اس نے سرگوشی کی تھی۔ اینا کو اس کی انگلیاں اپنی کمر پر رقص کرتی محسوس ہوئیں۔ اس کے وجود میں جنبش ہونے لگی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، البتہ اس شخص کی آواز سے اسے لگ رہا تھا جیسے یہ آواز اس کے کانوں نے پہلے بھی کہیں سنی ہے۔ اینا، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میرا وعدہ ہے جب تم دوبارہ سو کر اٹھو گی تو تم خود کو بہتر محسوس کرو گی۔ میں یہیں تمہارے پاس ہوں۔ وہ اسے نرمی سے کہتا ہوا بیڈ تک لایا اور اسے لٹاتے ہوئے اس پر کمبل دے دیا۔ اینا کچھ نہیں بول پائی تھی۔ اس شخص کے لہجے میں اینا کے لیے فکر تھی۔ اینا نے اس شخص پر بھروسہ کر لیا تھا۔ جانے کیوں دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخص اس کا اپنا ہے۔ اس کی میٹھی آواز اینا کو کچھ جانی پہچانی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ذہن پر زور دینے لگی تاکہ یاد کر سکے کہ یہ شخص کون ہے، مگر معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس کا چہرہ دیکھتی تو اس کی مشکل تھوڑی سی آسان ہو جاتی اور وہ اسے پہچان لیتی، مگر مسئلہ اندھیرے کا تھا۔ وہ اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ سر شہریار، آپ کے لیے ایک ارجنٹ کال ہے، کوئی لڑکی دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی تھی، اور اس شخص کا نام سن کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس کا دماغ ماضی میں پلٹا۔ وہ اس شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اینا سہیل کا تعلق درمیانے طبقے سے تھا۔ اس نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جہاں کا ماحول بہت ٹاکسک تھا۔ اس نے بچپن سے اپنے باپ اور اپنی دادی کی نفرت کا سامنا کیا تھا۔ ددیال میں کوئی بھی اسے اور اس کی ماں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ سلمہ بیگم کو بھی ہر وقت اس بات کے تانے ملتے کہ انہوں نے بجائے بیٹے کے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بچپن میں اینا ناسمجھ تھی۔ اسے گھر والوں کے نفرت انگیز رویے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن اور خوش رہتی تھی، مگر جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی اسے اندازہ ہوا کہ ددیال میں سب اس سے اور اس کی ماں سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ اینا ایک ذہین لڑکی تھی۔ اسکول میں ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا۔ وہ کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتی تھی۔ اسکول میں پسند کی جانے والی اینا کو اس کے گھر میں کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے شکوہ کرتی تو وہ اسے پیار سے سمجھا دیتی اور اسے گلے لگاتے ہوئے تسلی دیتی کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اسی پر خوش ہو جاتی تھی، مگر جب اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو وہ پہلی بار ان سے بے حد خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کے ابو نے اس پر ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ دادی بھی اسے ڈانٹتی اور مارتی تھی۔ وہ لوگ اس کی پڑھائی کے بھی خلاف تھے، مگر سلمہ اینا کی پڑھائی کی خاطر سب سے لڑ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی شخصیت میں خوف جنم لینے لگا۔ اس کے اندر اعتماد کی کمی ہونے لگی اور وہ بلا وجہ ڈرنے لگی۔
उसे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। वो सबसे दूर भागने लगी थी, तन्हा रहना पसंद करती थी और अपनी इस तन्हाई को दोस्त बनाते हुए उसने हर वक्त पढ़ना शुरू कर दिया था। पढ़ पढ़ कर उसकी सेहत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने जैसे तैसे करके मैट्रिक कर लिया, क्योंकि घर वाले उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे। वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, मगर इस बार भी सब उसकी कामयाबी और तरक्की की राह में दीवारें चीन बनकर खड़े हो गए। वो बहुत रोई थी। उसकी इल्तिजाएं किसी काम नहीं आई थी। अब्बू प्लीज़ मुझे पढ़ने दें, मैं कभी आपका सर नहीं झुकाऊंगी, मैं मेहनत करूंगी, बहुत अच्छा पढ़ूंगी और अच्छी नौकरी करके आप सबको बेहतर मुस्तकबिल दूंगी। वो अब्बू के आगे फरियाद कर रही थी। सुहेल साहब सिगरेट पीने में मसरूफ़ थे। उन्हें जुए में बड़ी हार का सामना हुआ था। वो गुस्से में बैठे थे। ऐना की बात सुनकर उन्हें गुस्सा चढ़ा था। उन्होंने उसे मारते हुए अपना इश्ताल उस पर निकालना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशानात थे। होंठ से खून निकल रहा था। उन्होंने उसके बाल खींचना शुरू कर दिए। बेटी को बचाने सलमा बेगम बीच में आ गई थी, मगर सुहेल साहब ने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्होंने इश्ताल में सलमा को 3 तलाकें दे दी। सलमा को यूं लगा कि पूरा आसमान उस पर आ गिरा है। उनके कानों से जैसे धुएं निकलने लगे। वो फटी फटी निगाहों से सुहेल साहब को देखने लगी। आंसू शिद्दत से उनकी आंखों से बहने लगे। मगर आज सुहेल और उनकी माँ शायद अपने होशो हवास में नहीं थे। उन्होंने ऐना और सलमा को उनके सामान समेत घर से बाहर निकाल दिया। वो दोनों माँ बेटी सिसक सिसक कर रो रही थी। रात होने को थी। इलाका सुनसान था। सर्दी बढ़ रही थी। वो दोनों गली में ही बैठी हुई थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। ऐना सर्दी से ठुठर रही थी। हवा में बेहद खून की थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। कुत्तों की आवाज़ें इसे मज़ीद डरा रही थी। वो अपनी रोती हुई माँ के शाने पर सर रख गई और उनके बाजू को सख्ती से थाम लिया। उसके होंठ कपकपा रहे थे, हाथ लरस रहे थे। सर्दी से उसका खून जैसे जम रहा था। मामा, मुझे डर लग रहा है। नानी के घर चलते हैं। चले ना मामा, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? इन जालिम लोगों को अल्लाह पूछेगा। आप उठें और नानी के पास चले। वो अपने आंसू जब्त करती हुई बोली। अपनी माँ की तकलीफ का वो अच्छे से अंदाज़ा कर सकती थी। कैसे जाऊं अपनी माँ के पास? कैसे उन्हें इस उम्र में इतना बड़ा दुख दे दूं? वो खोए हुए लहजे में बोली थी। वो शख्स उनको शिद्दत से याद आया था जो उनकी पहली मोहब्बत था, जिससे उनकी बदकिस्मती से शादी नहीं हो पाई थी। शायद अगर वो इनकी किस्मत में होते तो आज सलमा दर बदर की ठोकरें ना खा रही होती। रात गहरी होती जा रही थी। गली से गुजरते हुए मर्द गौर गौर से इन दोनों माँ बेटी को देख रहे थे। अब तो सलमा बेगम को भी अंदाज़ा हो गया था कि रात के इस पहर इस सुनसान इलाके में घर के बंद दरवाजे के थड़े पर बैठे रहना हरगिज़ महफूज नहीं है। अब तो वो इस घर के अंदर कदम नहीं रख सकती थी। उनका शौहर महरम से नामहरम हो चुका था। अब ये घर उनका नहीं रहा था। ऐना को तकलीफ में देखकर वो मज़ीद दुखी हो रही थी। इसमें उनकी बेटी का तो कोई कसूर नहीं था। अपने आंसू साफ करती हुई वो उठी और वो दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच गए। फैसलाबाद से उन्हें इस्लामाबाद जाना था। उनका मैका इस्लामाबाद में था। उन्होंने 2 टिकटें खरीदी। ट्रेन के आने में 2 घंटे थे। वो ऐना को लेकर वेटिंग एरिया में चली गई। नींद उन दोनों माँ बेटी की आंखों से कोसों दूर थी। 2 घंटे आंसू बहाते माजी के बारे में सोचते हुए गुजर गए। ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई तो अपना सामान उठाती वो ट्रेन की तरफ बढ़ गई। तकलीफ से बेहाल होकर अब उन्हें नींद आ रही थी। ये सफ़र उनका सोते हुए गुजरा था। अगली सुबह वो इस्लामाबाद की ज़मीन पर कदम रख चुकी थी। अपनी माँ के घर पहुँचने के बाद सलमा उनके गले लगकर फूट फूट कर रोई थी। अपनी बेटी को इस गम में देखकर नानी भी बहुत तकलीफ में आ गई। उन्होंने अपनी बेटी और नवासी को अपने घर में जगह दे दी।
जहां आहिस्ता आहिस्ता उनके जख्म भरने लगे। ऐना ने इस्लामाबाद के कॉलेज में FSC में एडमिशन ले लिया और इन 2 सालों में उसने बेदरेग कामयाबियां हासिल की। कॉलेज के टीचर्स और प्रोफेसर्स उसकी तारीफ करते ना थकते थे, मगर उन्हें ऐना से एक शिकायत थी कि उसके अंदर एतमाद की बहुत कमी थी। वो हर वक्त चेहरे पर उदासी सजाए रखती थी। किसी ने भी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। ऐना की जिंदगी से मुस्कान ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उसे बचपन से जो जख्म मिले थे वो बहुत गहरे थे। FSC के बाद वो यूनिवर्सिटी में BBA में एडमिशन ले चुकी थी। यूनिवर्सिटी में भी सब उसकी जहानत के कायल हो चुके थे। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी से घर आई तो उसने घर पर कुछ मेहमान देखे। उसकी अम्मी बहुत खुश नज़र आ रही थी। आज इतने अरसे बाद पहली मर्तबा उसने अपनी माँ को खुश देखा था। बेटा, ये शाहजहां है। सलमा ने उसका तारुफ करवाया था। उसने उन्हें सलाम किया और फिर उसके लबों पर गहरी चुप छा गई। वो ऐसी ही थी, बिल्कुल खामोश रहने वाली। जब उसे पता चला शाहजहां साहब उसकी माँ से शादी करना चाहते हैं तो इसके होश उड़ गए। उसकी माँ की भी यही ख्वाहिश थी। मामा प्लीज़ शादी मत करें, मुझे छोड़कर ना जाएं, मैं अकेली कैसे रहूँगी, आपके बगैर मर जाऊँगी, प्लीज़ मामा। वो उनके गले से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसका प्यार देखकर सलमा बेगम मुस्कुराने लगी। ऐना, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रही, बल्कि तुम मेरे साथ जाओगी। शाहजहां तुम्हें बाप का प्यार देंगे। उनकी कोई बेटी नहीं है, वो तुम्हें बेटी बना लेंगे। सलमा की बात सुनकर वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगी तो उन्होंने उसे माजी की कहानी सुनाई थी कि शाहजहां और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। पहले शाहजहां उनके मोहल्ले में रहते थे। वो लोग बहुत अमीर थे। शाहजहां के माँ बाप सलमा के स्टेटस की वजह से शादी के लिए नहीं माने थे, मगर अब वक्त बदल गया था। इतने अरसे बाद जब शाहजहां को सलमा की तलाक का पता चला तो वो रह ना सके। उनकी बरसों पुरानी मोहब्बत फिर से जाग उठी और वो उनका रिश्ता लेने आ गए। उनकी चंद माह पहले अपनी बीवी से अलैदगी हो गई थी और माँ बाप भी काफ़ी अरसा पहले फोत हो चुके थे। ऐना ये जानकर खुश हो गई कि वो अकेली नहीं रहेगी। शाहजहां साहब बहुत अच्छे थे। सलमा बेगम का निकाह बहुत सादगी से हुआ और वो अपनी बेटी के साथ रुखसत होकर शाहजहां मेंशन आ गई। ऐना इतना बड़ा घर पहली मर्तबा देख रही थी। घर के तमाम अफराद से शाहजहां साहब ने उनका तारुफ करवाया। उनके 2 बेटे थे जो फ़िलहाल उनसे उनकी दूसरी शादी पर नाराज़ थे और अपनी माँ के पास बैरूने मुल्क चले गए थे। ऐना की काबिलियत और जहानत के शाहजहां साहब भी कायल हो गए थे। ऐना शाहजहां साहब को उनके बिजनेस में भी काफ़ी मशवरे दे रही थी, जिन पर अमल करके शाहजहां साहब को बहुत तरक्की मिली थी। वो बहुत खुश थे। ऐना को बिजनेस में काफ़ी दिलचस्पी थी और बिजनेस की स्टडी के बाद वो बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगी थी। 1 साल में उसने शाहजहां साहब को बहुत अच्छे से मशवरे दिए। शाहजहां उसकी जहानत के कायल थे और अपने बेटों से कॉल पर बात करते हुए वो हमेशा ऐना की बहुत तारीफ करते। शहराम और शहरयार अब तंग आ चुके थे। इस ऐना से तो मिलना पड़ेगा। दोनों माँ बेटी हमारे बाप की दौलत पर अकेली राज कर रही होंगी। हमें पाकिस्तान जाना चाहिए। मुझे तो लगता है यही वो औरत है जिस वजह से डैड ने मामा को तलाक दी थी। शहराम गुस्से में बोल रहा था। शहरयार भी इस बात से इत्तेफाक करता था। वो दोनों अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते थे। कहीं ऐसा ना हो वो दोनों हमें डैड से दूर कर दें। चलो मामा से मशवरा करके पाकिस्तान चलते हैं। शहरयार जिम में मौजूद था। वो दोनों आपस में वहीं गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोटीन शेक पीने के बाद वो दोनों जिम से बाहर निकल आए और राबिया बेगम से मशवरा करके पाकिस्तान जाने की तैयारी करने लगे। वो शहरयार और शहराम की आमद पर बहुत खुश थे। 1 साल बाद उनके बेटे उनके पास वापस आ रहे थे। उन्होंने घर में खाने बनवाए और सजावट करवाई। वो अपने बेटों को खुश करना चाहते थे। वो दोनों घर पहुंचे तो सबसे पहले शाहजहां साहब ने सलमा से उनका तारुफ करवाया। वो दोनों बहुत रूखे तरीके से इनसे मिले।
अब उन दोनों की निगाहें ऐना को ढूंढ रही थी। उन्हें ऐना को देखने का बहुत इश्तियाक था। थोड़ी ही देर के बाद ऐना भी सर पर दुपट्टा लेती, निगाहें झुकाती आ गई। जो ही शहरयार की निगाह उसकी तरफ गई तो पलटना भूल गई। वो मबहूत होकर रह गया। उसे मासूम और छोटी सी ऐना बहुत अच्छी लगी थी। उसे तो लगा था ऐना बहुत शातिर और मकार लड़की होगी, मगर इसका चेहरा देखकर उसे वो बिल्कुल मासूम, भोली भाली और नाजुक सी लड़की लग रही थी। शहराम उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। शहरयार को चेहरे पढ़ने आते थे। ऐना के अंदाज से वो समझ चुका था कि ये लड़की वैसी नहीं जैसी वो समझ रहा था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उसका दिल ऐना की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो सबका ख्याल रखने की कोशिश करती थी। उसकी ज़हानत और बातें बहुत अच्छी होती थी कि शहरयार का दिल चाहता वो उसे सुनता रहे। शहराम, जो कि उन माँ बेटी से बदला लेना चाहता था, जब उसने देखा उसका अपना भाई ऐना की तरफ माइल हो रहा है तो उसे सख्त गुस्सा चढ़ा। वो जब भी ऐना को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता तो शहरयार बीच में आ जाता। शहराम ऐना की कमज़ोरी तलाश कर रहा था। उसे मालूम हुआ ऐना अंधेरे से बहुत डरती है, तो उसने एक मंसूबा बनाया कि वो उसे तकलीफ देगा। ऐना, जो 4th फ्लोर पर स्टोर रूम है, वहाँ मेरी एक पुरानी रस्ट वॉच पड़ी है, वो ड्रेसिंग टेबल से उठा लाओ। वो उसे नरमी से कहते हुए बोला तो ऐना इजाब में सर हिलाती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब वो स्टोर रूम में पहुंची तो उसने लाइट जलाने की कोशिश की, मगर उस स्टोर रूम की लाइट नहीं थी। वो अंधेरे में ही ड्रेसिंग टेबल के पास आ गई। इसी दौरान उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद हो चुका था और कमरे में अंधेरा छा गया था। उसके होश उड़ गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो दरवाजे की तरफ आई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। शहराम ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी थी। उसे तकलीफ देकर वो खुश होता हुआ वहां से चला गया। जानता था उसकी चीखों की आवाज़ें ग्राउंड फ्लोर तक नहीं आ सकेंगी। ऐना चीखते हुए अब थक चुकी थी। उसने सिसकियों से रोना शुरू कर दिया था। उसे बहुत डर लग रहा था। शहरयार, जो उस वक्त छत पर अपनी माँ से कॉल पर बात कर रहा था, जब सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया तो स्टोर रूम से उसने ऐना की आवाज़ें सुनी। वो हैरानी से स्टोर रूम के बाहर लगी कुंडी देखने लगा। उसका खून खौल उठा, क्योंकि वो जानता था ऐसी गिरी हुई हरकत उसके भाई के सिवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वही ऐना और उसकी माँ से शदीद नफरत करता था। उसने स्टोर रूम की कुंडी खोली और अंदर दाखिल हुआ। ऐना, तुम ठीक हो? वो उसके करीब आते बोला। ऐना ज़मीन पर बैठी रो रही थी। इसे देखकर फौरन उठी और बेसाख्ता उसके सीने से जा लगी और उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए। वो बहुत डरी हुई थी, इसीलिए उसे कुछ खबर नहीं थी कि वो शहरयार के दिल की धड़कनों को हिला गई थी। शहरयार का दिल उसकी कुर्बत पर तेज़ी से धड़कने लगा। वो जो पहले ही उसका असीर हो बैठा था, अब शिद्दत से उसकी मोहब्बत को महसूस करने लगा था। वो खो सा गया था। उस लम्हे को वो महसूस कर रहा था। होश उसे तब आया जब ऐना उससे दूर हुई और उसे बताया कि शहराम ने उसे स्टोर रूम में भेजा था। शहरयार उसका हाथ पकड़कर उसे शहराम के पास लाया और उसे खूब जलील किया। वो चाहता था शहराम ऐना से माफ़ी मांगे, मगर वो बहुत मगरूर और अना वाला इंसान था। उसने अपनी गलती तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया। अलबत्ता वो सोच चुका था कि अपने भाई को ऐना के खिलाफ बहुत भड़काएगा। कहाँ वो ऐना और उसकी माँ से बदला लेने आए थे और अब उसका भाई ही ऐना के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। शाहजहां साहब की नज़रों में भी शहरयार के ऐना के लिए जज्बात छुपे नहीं रह सके थे। वो बहुत खुश हुए थे और चाहते थे वो उन दोनों की शादी कर दे। इससे पहले कि वो अपनी ये ख्वाहिश सामने रखते, उससे कबल ही शहराम ने अपना खेल खेलना शुरू किया। उसने ऐना को नींद की गोलियां दूध में मिला कर दी और फिर अपने एक दोस्त के साथ एक मंसूबा बनाया। उसने अपने एक दोस्त को रात के पहर ऐना के कमरे में भेज दिया।
وہ اینا کے ساتھ بستر پر لیٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اینا ایک بد کردار لڑکی ہے شہریار، وہ صرف پیسوں پر مرتی ہے۔ پہلے بھی وہ غیر مردوں سے تعلقات میں رہی تھی اور آج رات بھی۔ پہلے تو میں نے اس کا پردہ رکھ لیا، مگر اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ شہرام کی بات سن کر شہریار کا دل کیا وہ اپنے بھائی کا منہ توڑ دے۔ تم اینا پر الزام لگا رہے ہو، وہ اس کا گریبان پکڑتے بولا تو شہرام اپنی بات کا یقین دلانے اسے اینا کے کمرے کے باہر لے گیا اور کھڑکی سے اندر کا منظر دکھایا، جسے دیکھنے کے بعد شہریار کو لگا کہ اس کی دنیا اجڑ چکی ہے۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شہرام نے اپنے دوست کو بھی گھر کے پچھلے گیٹ سے بھیج دیا۔ شہریار نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اسی پر یقین کر چکا تھا۔ بغیر تصدیق کیے، بغیر اینا سے بات کیے، وہ اس کے بارے میں غلط سوچنے لگا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ لڑکی اتنی بڑی منافق نکلے گی، حیا کا لبادہ اوڑھ کر اتنی بے شرمی دکھائے گی۔ اسے لگا وہ مزید یہاں رہا اور اینا کے بارے میں سوچتا رہا تو اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ دکھی دل سے وہ کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر اگلی صبح ہی لندن جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہریار سب کو بتائے بغیر جا چکا تھا، اور جب اس کے اچانک لندن جانے کا شاہ جہاں صاحب کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ شہریار نے بہانہ بنا دیا کہ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اینا کی وجہ سے اس کی دنیا جیسے ختم ہو گئی تھی۔ شاہ جہاں صاحب نے اس سے اینا کے ساتھ شادی کے حوالے سے بات کی۔ ڈیڈ، میں شادی اپنی مرضی سے لندن میں کروں گا، بہتر ہے آپ اینا کے حوالے سے کسی اور کو سوچیں، وہ غصے میں بولا۔ شاہ جہاں حیران تھے کہ شہریار کا رویہ تو انہیں کچھ اور ہی بتا رہا تھا، اور وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اینا کو جب شہریار کے یوں جانے کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ اینا کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اور اس کے اس رویے سے اینا بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ شہریار غصے میں ایسا پاکستان چھوڑ کر گیا کہ 3 سال ہو گئے وہ واپس نہیں آیا۔ وہ پاکستان صرف 5 مہینے کے لیے رکا تھا، اور ان 5 ماہ میں اسے اینا سے شدت کی محبت ہو گئی تھی، مگر سب کچھ لمحوں میں ختم ہو گیا تھا۔ ان 3 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ شہرام نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اینا کو اپنے گھر والوں کے سامنے بری لڑکی ثابت کرے۔ وہ اینا سے ہمدردی ظاہر کرتا، مگر اس کی پیٹھ میں وہی چھرا گھونپ رہا تھا۔ اس کا باپ ہر وقت اس کی گن گاتا تھا، اس کی ذہانت اور حیا کی بات کرتا تھا، مگر آج وہ ان کے دل میں اینا کے لیے دوری کا بیج بو چکا تھا۔ اس نے حالات ہی ایسے پیدا کیے تھے کہ سب کو لگ رہا تھا کہ اینا کے لڑکوں سے تعلقات ہیں۔ اینا سب کی نگاہوں میں مشکوک بن گئی تھی۔ اس نے اپنے دوست کو رات کے پہر اینا کے کمرے میں بھیجا تھا، اور پھر چوری چھپے شاہ جہان اور سلمہ کو اس کے پیچھے بھیج دیا تھا۔ اینا جو خود اس لڑکے کو اپنے کمرے میں دیکھ کر پریشان تھی، جب ماما اور شاہ جہاں کو آتے دیکھا تو بوکھلا گئی اور اپنی صفائی دینا چاہتی۔ پہلے تو لوگوں نے اس کا یقین کر لیا، مگر جب یہ بار بار ہوا تو وہ لوگ اینا کے بارے میں مشکوک ہو گئے۔ شہرام اس کی عزت سب کے سامنے 2 ٹکے کی کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ تمہیں اپنی ذہانت پر بڑا غرور ہے نا؟ یہ غرور چھین لوں گا میں کہ تمہیں اپنا نام تک یاد نہیں رہے گا۔ وہ سگار پیتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اس کا ایک دوست ڈاکٹر تھا، اس نے اسے اینا کے لیے میڈیسن لینا شروع کر دی تھی۔ گھر کی ملازمہ کو پیسوں کے لالچ دے کر اعتماد میں لے کر وہ اینا کے کھانے پینے میں وہ چھوٹی گولی ملا دیتا، جس نے اینا کی ذہنی حالت کو بری طرح متاثر کیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ راتوں کو وہ چیختی چلاتی تھی، اکثر وہ ایسی باتیں کرتی جو حقیقت میں کبھی وقوع پذیر ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی عجیب سی حرکتیں کرتی تھی۔ آنٹی، مجھے لگتا ہے اینا مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہے، میں ایک اچھے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر کو جانتا ہوں، اسے چیک کروا لیں۔ شہرام بظاہر ہمدردی سے بول رہا تھا۔ اینا کی فکر میں شاہ جہاں اور سلمہ اسے
डॉक्टर मतीन के पास ले गए थे। डॉक्टर मतीन को, जो शहराम का ही दोस्त था, शहराम ने अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे ऐना के साथ क्या करना है। डैड, मैं कुछ अरसे के लिए लंदन जा रहा हूँ, वो अजीब से लहजे में बोला। उसका मकसद सिर्फ ऐना की ज़िंदगी तंग करना था। वो लंदन तो जा चुका था, मगर अक्सर किसी को बताए बिना चंद दिन के लिए पाकिस्तान आ जाता और घर में चोरी छुपे घुसकर ऐना को खौफजदा करने की कोशिश करता। बहुत जल्द मैं तुम्हें मार दूंगा ऐना। तुम्हारी वजह से मेरे डैड मुझसे दूर हो गए। उन्हें तुम्हारे अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं। देखना, मैं तुम्हें इस दुनिया से ही दूर भेज दूंगा, फिर तुम कभी उन्हें नजर नहीं आओगी। वो उसे दीवार से लगाते बोला। ऐना डर गई कि शहराम तो लंदन में मौजूद है, फिर उसके सामने वो कौन है। उसने अपना सर थाम लिया कि शायद ये शराब है, धोखा है। वो अपना सर थाम कर बैठ गई और आंखें मूंद गई। उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा था। शहराम चुपके से कमरे से निकल गया। जब ऐना ने सर उठाकर देखा तो कमरे में कोई मौजूद नहीं था। ऐना को सब पागल समझने लगे थे। उसकी जहानत, काबिलियत, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लोग उसे तरहम भरी निगाहों से देखते थे कि वो लड़की जो बहुत ज़हीन और काबिल हुआ करती थी, आज उसकी हालत काबिल रहम है। ऐना ने हॉस्पिटल में डॉक्टर मतीन और शहराम की गुफ्तगू सुन ली थी। वो दोनों कॉल पर बातें कर रहे थे जब उसने सलमा और शाहजहां को बताया कि ये सब शहराम की प्लानिंग है, कि वो ऐना को पागल करना चाहता है और डॉक्टर मतीन भी उसमें मिला हुआ है और वो ऐना को पागल होने की दवा दे रहा है। ये सुनकर सलमा और शाहजहां ने गहरी सांस ली। वो इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था ऐना को वो चीज़ें महसूस हो रही हैं जो असल में हैं ही नहीं। वक्त गुजरता गया और उसकी इस हालत को काफ़ी अरसा हो गया। शहराम बहुत खुश था। ऐना सब कुछ भूलती जा रही थी, यहाँ तक कि कभी कभार वो अपने बाप को भी भूल जाती थी। सब खत्म हो रहा था। डॉक्टर मतीन उसे हरास करने की भी कोशिश कर चुका था। जब वो इस बारे में घर बताती तो सलमा उसे तसल्ली देती कि ऐना, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। जो भी तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारा वहम है। डॉक्टर मतीन बहुत अच्छे हैं, तुम परेशान ना हो। सलमा की बात सुनकर वो शॉक्ड रह गई। घर में सब उसे पागल समझने लगे थे। इन 3 सालों में शहराम ने उसे जहनी अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शहरियार, जो लंदन में बिजनेस संभाल रहा था और ऐना को भूल चुका था, आज जब उसने शहराम की चोरी छुपे डॉक्टर मतीन से गुफ्तगू सुनी तो दंग रह गया। ऐना के बारे में क्या बात कर रहे थे तुम? वो नॉर्मल से अंदाज में पूछने लगा और यूं जाहिर करवाने लगा जैसे उसे ऐना की कोई फिक्र नहीं। शहराम भी जानता था शहरियार ऐना से नफरत करता है, इसलिए बड़े फख्र से उसे बताने लगा कि वो ऐना से बदला लेने के लिए किस हद तक गिर चुका है। मुझे ऐना को इस हाल में देखकर बहुत खुशी होती है। डैड तो उसे बिल्कुल तंग आ चुके हैं। अब देखना, वो ऐना को घर से निकाल कर पागल खाने छोड़ाएंगे और इस बात पर सलमा आंटी का उनसे झगड़ा होगा और यूं उन दोनों की शादी टूट जाएगी। अम्मी को तलाक दी थी ना डैड ने, अब दूसरी बार मैं उनका घर बसने नहीं दूंगा। वो फख्र से बोल रहा था और ये सब सुनने के बाद शहरियार के होश उड़ गए थे। 3 साल पहले उस रात का मंजर उसके सामने आने लगा जब शहराम खुद ऐना के हवाले से उससे बात करने आया था। कड़ी से कड़ी मिलती गई और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जो शख्स किसी मासूम लड़की को इस हद तक पहुंचा चुका है कि लोग उसे पागल समझ रहे हैं, तो क्या वो शख्स उसे भी ऐना के हवाले से धोखा नहीं दे सकता? वो सोच विचार करने लगा तो उसने ये नतीजा निकाला कि उस रात भी उसके भाई ने ही उसे ऐना के खिलाफ भड़काया था। वो कुछ सोचने लगा और किसी को बताए बगैर अगले दिन पाकिस्तान रवाना हो गया। उसने जो ऐना के बारे में सोचा और उससे 3 साल तक दूर रहा, अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी मोहब्बत पर शक किया। डॉक्टर मतीन जिस अस्पताल में होता था वहाँ शहरियार के दोस्त की बहन भी नर्स थी।
اسی لیے شہریار نے اس سے اینا کے بارے میں انفارمیشن وغیرہ لی۔ شہریار، آپ اینا کو ہاسپٹل سے آج ہی لے جائیں، ڈاکٹر متین ان کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، نرس نے اس سے کہا۔ شہریار خود نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ڈاکٹر متین اسے جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنے چند ملازموں کو جو اس کے فارم ہاؤس میں ہوتے تھے انہیں سب سمجھا کر اسپتال بھیج دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اینا کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ چلتا، اس لیے اس نے یہ کام خفیہ طور پر کیا۔ نرس نے شہریار کے کہنے پر CCTV کیمرے ڈسیبل کر دیے تھے اور یوں وہ اینا کو اپنے فارم ہاؤس تک اپنے آدمیوں کے ذریعے لے آیا۔ اتنے عرصے بعد اسے دیکھ کر اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ اپنے آپ کو نادم محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اینا ڈر کر اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے۔ اسے بہت شرمندگی ہوئی، وہ اسے کیا بتائے کہ وہ وہی شخص ہے جو اس سے محبت کرتا تھا، مگر پھر اس پر شک کر کے اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ بے ساختہ اس نے اینا کو اپنے گلے سے لگایا اور اسے تسلی دی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ ماضی کی دردناک یادیں سوچ کر وہ سو چکی تھی۔ ڈاکٹر متین کو شہریار نے اسپتال سے اٹھوا لیا تھا۔ اس کے بعد کیمرے دوبارہ ایکٹیو ہو چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا ڈاکٹر متین کہاں غائب ہو گیا تھا۔ صبح جب اینا نے شہریار کو روشنی میں دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈاکٹر متین کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، اب باری شہرام کی اور اس کے دوستوں کی ہے، جس وجہ سے تمہارے کردار کو مشکوک سمجھا گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بول رہا تھا۔ اینا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا شہریار بھی اسے پاگل سمجھے گا۔ 3 دن بعد وہ اسے محبت سے گھر لے کر آیا۔ شہرام ڈاکٹر متین اور اینا کی گمشدگی کی خبر سن کر پاکستان آیا تھا۔ جب اس نے اینا کو شہریار کے ساتھ دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ شہریار نے اس کے دھوکے کے بارے میں شاہجہاں صاحب کو بتایا اور اس کا پردہ فاش کر دیا۔ شاہجہاں صاحب نے شہرام کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ اسے سزا کے طور پر اپنا دیا سب کچھ لے کر گھر سے نکال چکے تھے۔ اینا کی صحت میں بہتری آنے کے بعد اس کی اور شہریار کی شادی کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر متین اور شہرام کا ایک دوست پولیس کی حراست میں تھا اور ان دونوں نے شہرام پر بھی جھوٹا الزام لگا کر اسے پھنسا دیا تھا۔ شہرام اپنی سزا کاٹ رہا تھا اور یہ تنہائی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر متین کے ساتھ ساتھ وہ بھی 5 سالہ قید جھیل رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا اس غربت اور تنہائی میں وہ پاگل ہو جائے گا۔ اب اسے اینا کے درد کا اندازہ ہو رہا تھا، مگر وقت گزر چکا تھا۔ جس لڑکی کو اس نے ذہنی مریضہ بنانے کی کوشش کی تھی، آج وقت نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی خود کو پاگل سمجھنے لگے گا۔ ہر وقت قید میں روتا رہتا تھا، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا تھا۔ شاہجہاں اس سے ناراض تھے اور ان کا کہنا تھا وہ سزا پوری کر کے 5 سال بعد ہی گھر لوٹ سکے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔